السلام علیکم, یو واچنگ دا سلیم بخاری شو. دس از می فیضا ریاض. عید کا ہے جی دوسرا دن, خوب دعوتیں, خوب کھانے پینے چل رہے تھے. دیکھ رہے ہیں گلے خراب ہے دعوتیں اور کھانے کھا کھا کے. بخاری صاحب ابھی پتہ چل گیا ہے, بتائیں جی آپ کے کیسے رہے عید کا پہلا دن؟ خوب دعوتیں اڑائیں آپ نے, اور آپ کے جو کھیر کے قصے بڑے مشہور ہیں, یہ بتائیے. یہ اسپیشل قسم کی, ناظرین میں آپ کو بتا دوں, ایک کھیر ہے جو کہ دور دور تک جس کی لذتوں کے قصے مشہور ہیں کہ بخاری صاحب کی وہ اسپیشل قسم کی ایک کھیر ہے جو کہ وہ تیار کرتے ہیں. تو آج ہم ریسیپی وہ شیئر کرواتے ہیں. بخاری صاحب آپ تھوڑی تھوڑی چیز کسی ایک گھر میں جا کے چکھنی بھی شروع کریں, یا گھر میں آپ کے جو مہمان آئے ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی اگر آپ چکھیں تو شام تک بس اللہ کا فضل ہو جاتا ہے پیٹ کے اوپر. جی, وہ آپ کے گلے کی کیفیت اور پھر یہ کہ وہ چاٹیں بنی ہوئی ہیں, اس میں کھٹائی ہے, گول گپے کھائے جا رہے ہیں, اس میں کھٹائی ہے, تو اس سے گلا تو سب سے پہلے قربان ہوتا ہے. باربیکیو اور پھر املی آلو بخارے کی چٹنی کے ساتھ. ہاں نہیں, ظاہر ہے, میں نے کہا جیسا ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جو اس کے ڈشز ہیں عید کی خاص طور سے جو بنتی ہیں, کچھ لوگوں کی اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں, وہ اپنی اپنی ڈش بنا کے اپنے سارے عزیزوں کو, دوستوں کو وہ انٹرٹین کرتے ہیں. اس میں بھی ایک لذت ہے, ایک مزہ ہے اس کے اندر بھی. آج ویسے پروگرام کا سٹارٹ میں آفیشیلی یہ کہنا چاہ رہی تھی, آج ہے جی آفیشیلی سسرال ڈے, تو سب بیگمات مائکے جا رہی ہیں اپنے اپنے گھروں کو واپس. کل انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں ریسیو کیا مہمانوں کو, اور اگلا دن نیچرلی ان کا اپنے اپنے گھروں کو جانے کا ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک پیشنیٹ صورتحال ہوتی ہے جب وہ اس غرض سے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے ملیں گی, ان کے ساتھ وقت گزاریں گی, تو یہ بھی ایک عید کے ریچول کے ساتھ وہ ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ ہمارے ہاں جو ہے, میں آ رہا ہوں کھیر پہ, ہمارے ہاں چونکہ عید جو ہے وہ ایک دن کی نہیں 3 دن کی ہوتی ہے. وہ ایک ٹرو ہوتا ہے اگلے دن, پھر اس کے بعد مرو ہوتا ہے. اور خاص طور سے ہمارے وسیم تاج صاحب جو ہیں, یہ ان کے تو محلوں میں, یعنی ان سائڈ جو وارڈ سٹی ہے اس میں تو مرو شروع جو ہے بڑے فین فیئر کے ساتھ منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب آ جائیے جناب ڈشز کی بات کر لیتے ہیں. جی, بہت ساری خواتین بہت ساری اسپیشل ڈشز بناتی ہیں اس دن, اور اسی طرح سے مرد بھی پھر پیچھے نہیں رہتے ہیں. سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہے باربیکیو. باربیکیو میں خواتین ویسے ہی بیک سٹیپ کر جاتی ہیں کہ جناب یہ تہاڈا کام ہے, ساڈا یہ مردوں کا کام ہے. ویسے کہ ہر گھر کے اندر ہوتا ہے باربیکیو, لیکن یہ کہ اس کے لیے بھی تیاری بڑی کرنی پڑتی ہے. وقت سے جا کے گوشت لانا ہے, پھر آپ نے اس کو مسالے لگانے ہیں, پھر میرینیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے, تو یہ ایک پوری ایکسرسائز ہے یہ. اور جس نے کوئلے آگ لگانی, آگ بجھانی ہے, وہ تو یہ بھی جیسا میں نے کہا کہ اکثر گھروں میں جہاں یہ یعنی باربیکیو ہوتا ہے, اس کا بھی فین فیئر دیکھنے والا, دھوئیں اٹھ رہے ہیں, پنکھے جلے جا رہے ہیں, اس کو آگ کو. یہ خواتین تو ایسے ہی بدنام ہے آگ لگانے. دیکھیں مرد کتنی اچھی آگ لگاتے ہیں. ہم تو سال میں 1 دفعہ لگاتے ہیں, آپ تو کوئی موقع چھوڑتے ہی نہیں ہے. ہمیں تو 1-2 دفعہ موقع ملتا ہے. آپ تو صبح سے شام تک سوائس کے اور کیا کرتی ہیں؟ نہیں میں نہیں, میں یہاں پہ خواتین کو جو ہے وہ کروں گی. میں ایک بات, عید سے بات چلی جائے گی. آپ عید ہر گھر کی آپ ڈرائنگ روم میں دیکھیں, جتنی گاسپس جو چل رہی ہوتی ہے مردوں کے مابین, خواتین کی نہیں اتنی چل رہی ہوتی. نہیں, وہ سارا سال نہیں بات آتی نا, تو ایک موقع ملتا ہے جیسا میں نے کہا, وہ سارا سال کسر نکال کے تھک چکی ہوتی ہیں, تو پھر وہ ہم ٹیک اوور کر لیتے ہیں کہ چلیے آج کا دن ہمارا. نہیں ویسے یہ اتنا, ہمارے یہاں کے مرد اتنے باتونی ہو گئے ہیں, اور اتنے قصے کہانیاں, میں تو اتنا انجوائے کرتی ہوں. میں کہتی ہوں دیکھو اب ہمارے مرد بھی یہ اس قسم کی گاسپس کر رہے ہیں. لیکن اس کا دیکھیں, اس کا چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے. ابھی تک ہم ضرب المثل نہیں بنے. ابھی نہیں بنے. زبان جو ہے اس کے اعتبار سے خواتین کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, آ جائیے جناب. ایک اور ایلیمنٹ یہ ہے, وہ یہ کہ کچھ لوگوں کو ویسے پکانے کا شوق ہوتا ہے. مجھے یہ شوق اپنی ماں سے ملا تھا. میں نے سب چیزیں پکانی اپنی ماں سے سیکھی ہیں, اور اس لیگیسی کو میں لے کے چل رہا ہوں آگے. میرے بچوں میں, میرے گھر میں, میری وائف, ان کے اوپر میں نے ٹھونسا ہے. اچھا, 2-3 زیادہ نہیں ہے. ایک تو کھیر جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, یہ میں نے کھائی ہوئی ہے. سال میں 2 ایونٹس ہوتے ہیں جس کے وہ بھی بنانی پڑتی ہے. یہ ساری رات کی ایکسرسائز ہے. یہ بھی ایک وقت 1-2 گھنٹے کا کام نہیں ہے. پہلے تو آپ دودھ جمع کرتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو دودھ دینے والا جو ہے وہ ایک دن میں تو آپ کو 20 کلو دودھ نہیں دے گا. ٹھیک ہے جی, تو پہلے آپ دودھ اکٹھا کرتے ہیں, پھر اس کو ابالنا ہے, پھر اس کو خراب ہونے سے بچانا ہے, فریج میں رکھنا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کے جو لوازمات ہیں نا, اس کی تیاری میں زیادہ وقت لگتا ہے, کیونکہ اس کے لیے جو ڈرائی فروٹ کاٹا جاتا ہے وہ ایک تو اس کے کاٹنے کا خاص ایک سلیقہ ہے. اگر آپ نے کھیر کھائی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ نظر نہیں آتا بیچ میں, لیکن جب لقمہ آپ کے منہ میں جاتا ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے. اچھا, یہ بڑی سفیسٹیکیشن کی بات ہے. یہ آپ ساری رات جاگتے ہیں, اس کے سرانے کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو آپ ہانڈی چڑھا کے اور پھر جا کے آرام سے یا اپنا کام کر لیں یا اپنے کپڑے استری کر لیں. ایسا نہیں ہے. اس کے سرانے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, ورنہ یہ نیچے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی.
अच्छा जी, इसके कई तरीके हैं इसको बनाने। कुछ लोग जो है इसमें चावल डालते हैं पीस के, तो वो खीर कम और फिरनी टाइप ज़्यादा हो जाती है। कुछ इसमें कस्टर्ड डाल देते हैं। अरे वाह, मुझे ऐसा लग रहा है ये सलीम बुखारी शो नहीं, ये कुकिंग शो कोई चल रहा है। आप देख रहे हैं? मैं इसको बनाता हूँ, प्योर मिल्क है इसमें और कुछ भी नहीं है। अरे कोई खोया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि वो 20 किलो दूध जो है वो कम से कम 5 या 5.5-6 किलो मैक्सिमम रह जाता है। पक के वो तो फिर खोया बन गया ना। एब्सोल्युटली। और अगर किसी को चाहिए तो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है डायरेक्ट बुखारी साहब के होम से। देखिए वो कहते हैं कि बातें करनी, दावे करने, ये तो बड़ी बात है। हाँ। लेकिन आपने चूंकि खुद मैंने खुद खाई, यस। और जो ऊपर जो बैठे हैं बिहाइंड द स्क्रीन, जो मेरे ये साथी पूरी हैं, टीम हमारी, हाँ, उन सबको भी पता है कि ये एक रिचुअल है जो मैं बनाता हूँ। दूसरा एक और मेरी स्पेशलाइजेशन है, वो है गर्दन का गोश्त और चने की दाल। ये नहीं मैंने अभी तक खाई। ये भी आपको खिला देंगे। गर्दन का गोश्त और इसका चने की नुकसान दाल। खिलाने का ये होता है कि फिर फरमाइशें इतनी रैपिड हो जाती हैं, हाँ, कि फिर क्योंकि बना ये के भी 1 घंटे 2 घंटे का काम नहीं है। अच्छा। ये जितनी भी चीजें स्पेशलाइजेशन बन जाती है ना, इसके अंदर वक्त, कंसंट्रेशन। गर्दन का गोश्त तो वैसे बहुत टेस्टी होता है, बहुत मजे का होता है। एब्सोल्युटली। यानी मैं आपको अर्ज करूं कि अगर आप वो दाल अब खिलानी पड़ेगी आपको, वो खाएंगी तो पता लगेगा कि सबसे ज्यादा जूसी और सबसे ज्यादा फुल ऑफ प्रोटीन, जेन्युइन प्रोटीन वो गर्दन का गोश्त है। और नॉर्मली करते ही हैं कि कसाई लोग जो हैं बकरे की 2-3 चीज़ें जो है ना, एक गर्दन हो गया, एक उसके गुर्दे और कलेजी हो गया वो, और एक उनका जो पुट का गोश्त है वो अक्सर अपने घर के लिए शुरू से ही निकालते हैं। पुट का गोश्त साइड पे कर दे, क्योंकि आप देखिए पुट करेले अगर आपने कभी खाए तो ये सारी चीजें, मुझे ईद नहीं है, मुझे कुकिंग शो ये जो है ये हम इसलिए करते हैं कि एक तो ये कि थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए कभी कभी बीवी घर की खवातीन को भी, और दूसरा ये कि मुझे लगता है भाभी ने ट्रेनिंग अच्छी करवाई थी आपको पूरे किचन की। नहीं, वो जब मेरे पास तशरीफ लाई थी तो सिर्फ अंडे का ऑमलेट बना लेती थी। अच्छा। और वो भी देखने में ऑमलेट नहीं लगता था। Oh my God, इस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो टेस्ट है वो अपनी माँ से लिया है। Alright. हाँ, मतलब उन्हें हमसे भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस भी मिला, इंस्पिरेशन भी मिला, लेकिन ये कि अब तो लोग उनके खानों की तारीफ करते हैं। कभी ना कभी आपको ये मौका फराहम करेंगे। और यार अब ये बात पक्की हो गई है। ठीक हो गया जी। एक तो ये मैंने कहा कि ये तो चलिए मैंने अपनी बात कर दी है, लेकिन अक्सर घरों में मर्द बहुत सारी चीजें बनाते हैं। कुछ लोगों को पाए बनाने का शौक है, कुछ लोग जो है वो बड़ी ईद पे ज्यादा बनते हैं, इसलिए कि गोश्त वाफर मकदार में होता है। लेकिन ईद पर भी जिनको शौक है ना पकाने का, उनको तो बहाना चाहिए, वो पकाते हैं। वो पकाते हैं। तो एक तो ये हो गया जनाब। और आज तो सारी बेगमां जब रुखसत हो चुकी हैं, अपने मायके जा चुकी हैं, तो फिर तो मर्द को मौका मिल जाता है देखिए जो आपकी नौयत की सख्त गीर खवातीन होती हैं वो तो अपने मियाँ को भी साथ ले जाती हैं। साथ चलो वरना वापस किचन में गंद डाला होगा। नहीं, वो वैसे भी ट्रस्ट नहीं करती ना, आप समझे कि पीछे पता नहीं क्या गंद मारेंगे, क्या पीछे क्या गंद मचा देंगे, वापस आके समेटना। तो घर की सफाई, घर की चीजें, जहाँ पर मेरे से तो सबसे ज्यादा शिकायत ये है कि जहाँ कपड़े में तौलिया है तो वो जहाँ फेंक दिया तो फेंक दिया, जूता जहाँ उतार दिया। ये जो सुगड़ किस्म की खवातीन होती है उनके लिए ये बड़ी छेड़ है। Having said that, ये बात सही बात है वैसे। Having said that, जी कुछ चीज़ें, कुछ लोग जो हैं मुआशरे में, काफ़ी सारे लोग वो ईद का दिन भी अपने घर में नहीं गुजारते हैं। दे गऊ में से खाना पका के साथ ले गए हैं, गार्डन में चले गए हैं। मिसाल क्या हमारे ये जो पार्क है, जलो पार्क, अच्छा जी, चिड़ियाघर, ये जू, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत चलानी पार्क चले गए। हाँ, मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ईद और ईद का अगला दिन जो है वो बाहर गुजारते हैं, और मैं समझता हूँ वो भी एक अच्छी बात है। खुली फिजा में ज़रा सांस लेना चाहिए। घुटे घुटे घरों में रहने से जो है वो बच्चों की जो नरिशमेंट है उसके ऊपर भी। और ईद भी यूजुअली होती बच्चों की है ना, वैसे बड़े लोग तो सो के गुजारते हैं। असल में मैं अर्ज करूँ आपसे कि ये इवेंट्स जो हैं इनके मैंने नौयत कल हमने बयान कर दी थी कि इसका एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, एक इसका सोशल कॉन्सेप्ट है, एक इसका फैमिली टू फैमिली कॉन्सेप्ट है। तो इन तीनों में ही बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये है कि दूसरों के बच्चों को ईद की खुशियाँ जो हैं मुहैया करने का आप सही करेंगे, अगर कोशिश करेंगे तो अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी पजीराई है। इसी तरह से अपने घर में बच्चों की खुशी के लिए आप क्या नहीं करते हैं, इसी तरह से आपके जो रिश्तेदार, क्लोज रिश्तेदार हैं, भाई बहनों के बच्चे बच्चियाँ हैं, उन सब के लिए ये सारा कुछ आप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के इसको एक इवेंट बना देती हैं। इट्स मोर ऑफ ए सोशल इवेंट दैन बीइंग ए रिलीजियस तो ड्यूटी है आपकी कि रमज़ान के बाद अल्लाह ताला ने भी आपको मौका फराहम किया कि आप सेलिब्रेट करें जो इबादत आपने की है। एक चीज़ हम उसका जिक्र करना भूल गए, एक जो आखिरी अशरा होता है उसमें एतकाफ़ का जो है उसकी अगर हम बात नहीं करेंगे
तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। यस, तो वो तो उठ गए ना कल सारे, हाँ, सबने मतलब ये कि सेलिब्रेट कर लिया। मैंने कहा ना कि ईद से रिलेटेड इतनी चीज़ें हैं, इतनी बातें हैं, आप इसके ऊपर 2 घंटे का 4 घंटे का प्रोग्राम कर लें, बातें ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, हर एक फ्लेवर मिलता है आपको। अब ये इत्तेकाफ वाला एक ये है नया फ्लेवर, और वो इतनी और इस इबादत को बहुत सारी इबादतों पर तरजीह दी गई है। ताक रातें सारी और इसमें लैलतुल आती हैं। कदर की रात ना भूलें आप, 27वीं की रात जो है उसमें जो इबादत करते हैं लोग, और उसका मंजरनामा अगर आप कहीं खाना काबा में और मस्जिद नबवी में देख लें, अरे तो माशाल्लाह, अकल दंग रह जाती। इट्स ए सी ऑफ ह्यूमन हेड्स। अरे वाह वाह वाह, एब्सोल्युटली। व्हाट इज द ब्रेक? लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द ब्रेक। ब्रेक हम नहीं मिस करेंगे जनाब। तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईद की खुशियों का सिलसिला जारी है, ईद मिलकर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद और ईद की सेलिब्रेशन, ईद की खुशियाँ, उसमें आपको मिल के हम खुशामदीद कहते हैं। ईद का दूसरा रोज़ है बुखारी साहब। हम सब तो यहाँ पर ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई जो कि बाहर हैं, और कोई कमाने की घर से ही बाहर गया होता है, वरना किसको ज़रूरत पड़ी है कि अपना मुल्क छोड़ के, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ के बाहर जाए। तो वो बहुत मिस करते हैं इस एलिमेंट को। देखिए, पहली बात तो यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, उनका जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के एतबार से जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म ऑफ रेमिटेंसेस, हाँ, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। एब्सोल्युटली। तो वो जो वहाँ से सुबह से शाम तक स्वेट करते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, सभी तो वाइट कॉलर जॉब पर नहीं जाते ना। आप देखिए मिडिल ईस्ट में हमारे लाखों की तादाद में लोग गए हुए हैं, वो सारे बेसिकली लेबर का काम करते हैं, या छोटा मोटा लोअर मिडिल क्लास के जो सब कोई वाइट काम कॉलर करते जॉब हैं, पे तो नहीं होता। वो बहुत मुश्किल है वहाँ। तो इसलिए कि वो तो उनके अपने लोगों के लिए भी काफ़ी नहीं है। एनीवे, ये मुशक्क़त जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को चला रही है, ये बैक होम उनके घरों को चला रही है। बहुत सारे लोग जो हैं, जो घर के वाहद सरबराह हैं, हाँ, वो अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी अहलिया को छोड़ के बाहर जाके सिर्फ एक काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो कुछ भी कमा रहे हैं उनकी कोशिश होती है उसका मैक्सिमम वापस चला जाए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो लोग जिनके अजीज़ बाहर यानी इसी गर्ज से गए हुए हैं कमाने के लिए, उनकी ईद की खुशियाँ मोहताज हैं उनकी मेहनत की, उनकी मशक्क़त की, और वो कोशिश ये करते हैं कि हमारे घरों वाले किसी से पीछे ना रहें। तो ये भी एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत है जिस पर हमने बात नहीं की है, कि वो लोग जो ईद को और ईद की सेलिब्रेशन को अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ, और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो देखिए, कोई ईद का दिन है और आपने बाहर, उनका तो ईद का दिन नहीं है ना। अगर कोई गैर मुस्लिम मुल्क में है, उसने तो ईद वाले दिन गले मिलने को कोई नहीं है, सवैयाँ खिलाने वाले को कोई नहीं है। मैं अर्ज करूँ, आपने बाहर निकल के जॉब करनी है। जो फिजा सबसे ज़्यादा मिसिंग लिंक है वो ये है कि मैंने देखा, चूँकि खुद मैंने 2-3-4 मरतबा बाहर ईद की है मेरे भाइयों के पास जाके, तो वो मिलने वाले लोग तो मिल जाते हैं, वो आपके दोस्त हैं, हाँ, वो आपका माँ बहन भाई बेटा बेटी वो नहीं है, खूनी रिश्ता नहीं। ये जो है ना, जो इस ईद के मिलन में, जिसको ईद मिलन हम कह लेते हैं, उसमें जो ह्यूमन पैशन है वो अगर मिसिंग है तो ईद की फेस्टिविटीज़ का आप मज़ा ले ही नहीं सकते। हाँ। तो वहाँ पर ये चीज़ वो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। 2 चीज़ें तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एक ये कि वतन, वो पाकिस्तानी ही नहीं है जिसको अपना वतन की याद सताए ना, हाँ। और दूसरी फैमिलीज़ और उनकी फेस्टिविटीज़, ये चीज़ें उनको एक दूसरे से लिंक किए हुए हैं। ये द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक आई वुड से। तो इस दिन हमें एक तो शुक्रगुजार होना है उनका, इसलिए कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में, जैसा मैंने कहा, हाँ, कि उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा ये कि अब चूँकि टेली कम्युनिकेशन लिंक्स इतने हो गए हैं इम्पॉर्टेंट, मैं आपको 2 कैफियतें बयान करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन के लिए। एक वक्त ये होता था कि आप बाहर काम कर रहे हैं और कॉल आपने बुक करा दी हुई है, और 6-6 घंटे 9-9 घंटे आपको ईद मुबारक कहने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन आज के कम्युनिकेशन टूल्स जो हैं, उसने आप ऐसे कर दिया जैसे आप साथ बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं। जहाँ इसकी नेगेटिविटीज़ हैं वहाँ इसकी पॉजिटिविटीज़ भी बहुत हैं। घर वालों के साथ तसलसल से राब्ते में है। जैसा मैं उस दिन आपसे, रबी से, वसीम से और फ़ारूक से बात हो रही थी कि मेरे जितने बच्चे हैं वो मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में हैं। एक बेटी कनाडा में है, एक सिडनी में है, एक लंदन में है, कुछ इस्लामाबाद में है। तो मैं हर गिवन मोमेंट में आपको बता सकता हूँ कि कौन इस वक्त कहाँ है। ये दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन टूल्स। तो इसने ओवरसीज पाकिस्तानी के दुख को भी थोड़ा कम किया है,
क्योंकि वो देख रहे हैं कि घर में लोग आ रहे हैं, घर में मेहमान आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि घर वाले पका रहे हैं, खा रहे हैं, हाँ। तो इट इज़ ए सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। Exactly. यानी आपको ये लगता है कि आप उनके बीच हैं और घर वालों को भी ये लगता है कि वो हमारी खुशियों में शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ा, ये बड़ा अच्छी बात है। अच्छा, आपने अभी बात की है कि आपने कुछ ईदें बाहर भी गुजारी हैं, आपका बेस्ट मोमेंट क्या था ईद को? किस पार्ट को आप ज़्यादा मिस करते हैं? जब बचपन की ईद या व्हेन यू वर यंग, वो वाली ईद का बड़ा मज़ा आता है, या अभी अब मैं आपको बुजुर्ग तो नहीं कहूँगी, मैं आपको कहूँगी still you are young. मैं कहने भी नहीं दूंगा। Still you are young. चलिए जी, इसको बयान करते हैं। हाँ। देखिए, बचपन की ईद जो है वो इट्स ए फैसिनेशन। हाँ। बच्चा जब अपने बाप से, अपने बड़े भाई से, अपनी बड़ी किसी से बहन ईद से, अपनी लेते माँ से ईद का मुतालबा करता है, तो वो उनके रिश्तों की पुकार है। वो समझते हैं हमारा हक है, और देने वाले समझते हैं हमारी ड्यूटी है। हाँ, फर्ज है हमारे, हमने ईद ही देनी है। सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग टाइम तो वो है जब आप बच्चे की हैसियत से ईद मनाते हैं और अपने बुजुर्गों से उसकी दाद वसूल करते हैं इन टर्म ऑफ मनी। दूसरा है जवानी। अच्छा। जवानी के अंदर ईद का अपना मज़ा है, इसलिए कि आपके मैच्योर दोस्त होते हैं, हाँ। आप उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की सेलिब्रेशंस हैं, आप आउटिंग के लिए जाते हैं, आप उनके एक दूसरे के घर विजिट करते हैं, आप एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ कलीग्स मिल के उसकी सेलिब्रेशन के कई रास्ते निकाल लेते हैं। आप कैंपिंग करते हैं बाहर जाके लोग, ईद वाले दिन या ईद से अगले दिन। तो और तीसरी फेज जो है वो है बुजुर्गी का। ये वो सब कुछ चूँकि हमने देखा हुआ है, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, लिहाजा हमें बच्चों और जवानों की, जो हमारे बड़े बच्चे मैच्योर्ड हैं, जो छोटे बच्चे या उन बच्चों के बच्चे हैं, उनके पैशन का इदराक है कि ये किस शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। लिहाजा होता ये है कि हम पहले से चेंज आपके पास होनी चाहिए। वो हरे लाल नोट की पहचान बच्चों को खूब है, नए नोट। हाँ, पहले तो सबसे पहला ये है कि आप उसे 100 रुपए दें, 50 दें, 500 दें, उसने पहले कहना नहीं मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। हाँ, मुझे ज़्यादा चाहिए। अब ये कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये कि इसका अपना एक मज़ा है, अपना मज़ा है। ठीक है जी। तो ये तीनों फेजेस में जब आप भी, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आप जब जाएंगी तो आप डिस्टिंक्ट कर पाएंगी कि यार तब क्या मज़ा था, अब क्या मज़ा है, और आगे क्या मज़ा। एग्जैक्टली, ये बड़े वैसे मज़े होते हैं। सबसे ज़्यादा वैसे मज़ा यही आता है जब आप बच्चों को ईद ही दे रहे होते हैं ना, और जब वो आपको कहते हैं नहीं और चाहिए, और आप उन्हें कहें नहीं बस इतनी, हमें तो इतनी भी नहीं मिलती। नहीं बच्चे, वो जो मज़ा है, पेरेंट्स कहते हैं कपड़े भी तो बनाए ना तुम्हारे। हाँ, एग्जैक्टली। वो तुम्हें गिफ्ट भी तो दिया है, तुम्हारे देखो ज्वेलरी भी आई है, और अभी खाना भी आपको खिलाने के लिए ले जाना है, मैंने बाहर रेस्टोरेंट घुमाने के लिए भी तो लेके जाना है। ये वो तकरार है जो जिंदा लोगों की दलील है। कितना मजा, ये जो लोग जिंदा लोग हैं, है। ये उनको डिपिक्ट करते हैं कि ये लोग जो हैं, इनके यहाँ खुशियाँ हैं, ये अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला हर ख़ानदान के बुजुर्ग को ये एहसास दे कि उसकी नज़रों के सामने। अच्छा, अब तो माशाल्लाह आपकी बेटियां बड़ी हो गई, उनके भी बच्चे हैं आगे से। अच्छा, बेटियां अभी भी कहती हैं नहीं डैडी हमें और ईदी चाहिए? मेरे ख्याल से ये तकरार कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। अच्छा, अभी भी हाँ, मतलब देखिए, ये रिश्ते ऐसे हैं जो चूँकि खुद कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लिहाजा इसके तकाजे भी ख़त्म नहीं होते हैं। हाँ, और तकाजों में सबसे पहले एक है और ईदी चाहिए, और दूसरा ये कि नोट बिल्कुल ऐसे कड़क और नया वाला होना चाहिए। और ईद से पहले नए नोट एटीएम से आना बंद हो जाते हैं। एटीएम से आना बंद हो जाते हैं, लोग ब्लैक में खरीदते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। 100 की थदी जो है वो आपको जाके 120 रुपए में मिलेगी कि वो हमें नए नोट चाहिए। अच्छा, ये ना कारोबार सबसे ज्यादा मैंने देखा मोची दरवाजे, जहाँ के हमारे वसीम ताज साहब ने। अच्छा, वो वसीम मुझे इसलिए याद आता है कि वहाँ ना नोटों के हार हों, चाहे शादी के लिए बनाने हो, चाहे कोई सेलिब्रेशन हो, चाहे ये नए नोट लेने हो वापस में, ये लोग बैठे होते हैं ब्रीफ केस लेके, सड़क के किनारे बैठे होते हैं, और धड़ाधड़ जो है ये कारोबार भी इतना चमकता है। इसलिए आपने ठीक कहा, बच्चों को नोट नया चाहिए, बच्चों को नोट बासी नोट नहीं चाहिए। नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, और ये इसी तरीके से चल रही हैं सदियों से। नया नोट भी उन्होंने अब शॉपकीपर को जाके जो चीज लेनी है वो लेके उसको दे देना है, खुद चाहे वही गले सड़े नोट, मगर वो जो उसकी ट्रांसफर है ना, फ्रॉम द फादर टू द सन, फ्रॉम द ब्रदर टू द यंगर ब्रदर, तो वो उसका अपना नशा है, मैचलेस है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, अगेन वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। आप जालिम खातून है, बात जब आगे बढ़नी होती है, जालिम रबी हैं वो, मुझे बार ब्रेक का, आपको पता है रबी की बात मैं नहीं टाल सकती। नहीं, इस वक्त यहाँ बैठ के तो हम उसकी कोई भी बात नहीं टाल सकते। जनाब, हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस।
بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کو پھر سے ویلکم کہیں گے. عید کی خوشیوں کا سلسلہ جاری ہے اور صحافیوں کی ویسے کوئی عید ہوتی نہیں ہے. دیکھ لیں عید والے دن بھی ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آ رہے ہیں. بخاری صاحب, میرا تو کریئر میں ابھی اتنا وہ تو سال گزرے نہیں ہے صحافت میں. آپ نے تو ماشاءاللہ مور دین 50 ایئرس آپ صحافت, کبھی پرنٹ, کبھی اس کے ساتھ پرنٹ میڈیا کے ساتھ, پھر آپ نیوز پیپر کتنے آپ نے کام کیا, پھر صحافت کے ساتھ ساتھ آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ اتنے سال کام کیا. کس طریقے سے صحافیوں کی عید ہوتی ہے؟ کیا کبھی کوئی عید گھر میں کرنا بھی نصیب ہوئی کہ یہ ٹی وی پر یا پھر کسی پولیٹیشنز کے ساتھ ہی؟ بہت آپ کا اہم سوال ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے نا, ہی از آن ڈیوٹی 24 آورس, کیونکہ اس کی نوکری جو ہے وہ ایونٹ کے ساتھ لنکڈ ہے. میں اگر گھر پہ ہوں, ایڈیٹر ہوں, یا میں چیف رپورٹر ہوں, یا میں رپورٹر ہوں, اور میری بیٹ میں کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے, تو آپ کی چھٹی بھی گئی, آپ کا ٹائمنگ بھی کوئی نہیں ہے آپ کی. خیر یہی کچھ سب الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہے, لیکن پرنٹ میڈیا میں یہ بہت تھا. میرے کیریئر کا جو ہے نا وہ کال شاعر کے کہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. تو میرا زیادہ وقت گزرا ہے پرنٹ میڈیا میں. نہیں, میں یہ کہتی ہوں اس ٹائم پر تو صحافی ایک بلا ہوتا ہوگا. میں اسی طرح تھوڑے سے لوگ تھے. میں کوشش کرتا ہوں وہ آپ کو فیل کرانے کی. دیکھیے, اس کے بارے میں آپ کو نا کچھ کوٹس سنا دیتا ہوں. رپورٹر کے بارے میں ڈیفائن کیا کسی ایک بڑے لیڈر نے. اس نے کہا, رپورٹر از دا ون ہو رائٹس ٹوڈے اینڈ کریٹس ہیل ٹمورو. یعنی جرنلسٹ وہ ہے, صحافی وہ ہے جو کچھ آج لکھے کل اس کے اوپر حشر برپا ہو جانا چاہیے. وچ مینس کہ وہ ایک تو سچ اتنا ہو اس میں, اور ایک اس میں پروب اتنا ہو کہ اگلے دن متعلقہ حلقوں میں ایک کھلبلی مچ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا کے جو نارمز ہم نے دیکھے ہیں وہ الیکٹرانک میڈیاز میں اس کا ریفلیکشن بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو خبر ٹریول کرتی تھی وہ رپورٹر سے دو طریقے سے, 2 سورس تھے. ایک رپورٹر لے کے آئے, ایک آپ کے پاس پریس ریلیز آ جائے, یا کوئی آپ کو خود بھیج دے لکھ کے. اس کے لیے سب سے پہلے چیف رپورٹر صاحب دیکھتے تھے اس کو, پھر اس کے بعد وہ ڈیسک پہ آ جاتی تھی, شفٹ انچارج دیکھتا تھا اس کو, پھر وہ نیوز ایڈیٹر کے پاس چلی جاتی تھی. اگر تو نیوز ایڈیٹر کے پاس جتنے پالیسی کے اختیارات ہیں وہ اس نے استعمال کیے ہیں تو کاپی چلی جائے گی آگے پروسیس میں, ورنہ وہ ایڈیٹر کو ریفر ہو جائے گی. اور آپ دیکھیے کتنے ٹیئرز ہیں جو ایک رپورٹر کو اپنی کاپی, کوئی بھی کاپی, یہ اس میں ایکسیپشن نہیں ہے. لیکن یہاں کیا ہے, یہاں جو میڈ ریس ہے الیکٹرانک میڈیا میں جو بریکنگ نیوز کی, ٹھیک ہے جی, اس نے تباہی کر دی ہے. یہ سارے ٹیئرز, یہ سارے سٹیپس ختم ہو گئے. یہ لوگ ہی نہیں ہیں بیچ میں. You are assignment editor and there is a reporter sending you anything, your discretion ہے کہ آپ نے کیا کرنا. Without confirm کیا آپ اس کو کر رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو کریڈیبلٹی تھی, جو رپورٹر کی کریڈیبلٹی تھی, وہ لارجلی کمپرومائزڈ ہو گئی ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہیں فیک نیوز کی چھاپ لگ رہی ہے اس کے اوپر, کہیں اس کی خبر کی پرزور تردید آ رہی ہے. تردید آنا رپورٹر کے لیے موت تھی. اچھا بخاری صاحب, آپ دا موسٹ ایوارڈڈ جرنلسٹ ہیں پاکستان کے اندر. 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو. ابھی ستارہ امتیاز آپ کو ملا ہے, پرائڈ آف پرفارمنس آپ کو مل چکا ہے. خوشی محسوس تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہوگی. اور کون سے ویسے آج بتائی دیں ہمارے سارے ناظرین کو کہ بھئی یہ ایوارڈز آپ کو مل چکے ہیں, اور آگے کتنے لوپ میں ہیں ملنے والے ہیں. دیکھیے, پہلا ایوارڈ تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جس پروفیشن میں ہیں وہاں آپ نے عزت کمائی ہو. If you are not respected in your profession, آپ کے ایوارڈز کچھ نہیں ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے لیگیسی اپنی آگے چھوڑی ہو. میں بڑے فخر کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں, اور یہ اللہ کے احسان کا میں احسان مند ہوں, کہ ایک وقت ایسا تھا کہ 11 اخبار نکلتے تھے انگریزی کے پاکستان میں. I'm talking about 90s. اس میں سے 9 اخبارات کے نیوز ایڈیٹر جو ہیں وہ میرے اپرینٹسز تھے. اوہ واو. یہ انتھنکیبل ہے, یہ میرے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ایک بات. دوسری, ایک انٹرنیشنل ایوارڈ مجھے ملا تھا, مولانا ظفر علی خان ایوارڈ ہے, وہ امریکہ میں بیسڈ ہے, اور وہ بیسٹ ایڈیٹر کے طور پہ مجھے ملا تھا 2012 میں. اور وہ بھی بہت بڑا آنر ہے میرے خیال سے. وہ وہاں پرچی سسٹم نہیں چلتا, وہ میرٹس پہ. یس. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ہیو نو ریگریٹس. اس پروفیشن نے, آپ اس کو میری محنت کہہ لیجئے, آپ اس کو میری ڈیڈیکیشن کہہ لیجئے, اس نے مجھے اتنا نوازا ہے. I've seen your album. I have been the highest paid journalist in my community for the last 30-35 years. Oh wow. One. Second یہ ہے کہ I have traveled across the world. اور تیسری, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, تیسری یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں جس کا لوگ
सोच भी नहीं सकते, ख्वाब नहीं देख सकते। आई एम वन ऑफ दोज 5 जर्नलिस्ट जिन्होंने इमाम खुमैनी को इंटरव्यू किया था एट दिस डिस्टेंस, जितने हम बैठे चटाई पे बैठ के। मैंने यासिर अरफात का इंटरव्यू किया है, मैंने कर्नल कज़ाफ़ी का इंटरव्यू किया है, मैंने डेंग शाओपिंग का जो चाइना का इतना बड़ा स्टॉलवर्ड्स हैं उनका इंटरव्यू किया, एंड किमल संग, नेम सो ऑन। दूसरा ये कि मैंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का जो सेशन होता है 2001 के बाद से, मैंने उसके 9 सेशंस जो हैं वो अटेंड किए हैं। और चौथा वो ये कि मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है एज ए हेड ऑफ ए डेलीगेशन इन 7 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। अभी द लास्ट वाज इन सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया में है, जो फेक न्यूज़ के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 163 कंट्री के लोग जो हैं वो डेलीगेशन थे और आप उसको लीड कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी मैंने, और मैंने जो पेपर पढ़ा था वहाँ पर वो उस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट करार पाया है। ओह वाओ। सो मुझे ना रिग्रेट क्या, मैं बहुत फख्र से कहता हूँ, और ये मैसेज भी है मेरा यंग जनरेशन के लिए जो इस वक्त प्रोफेशन में है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे वो प्रिंट मीडिया है, कि इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू योर वर्क, इफ यू आर सिंसियर टू योर वर्क, नोबडी कैन स्टॉप योर ग्रोथ, नोबडी कैन स्टॉप योर ग्रोथ। जिस चीज़ के लिए मेहनत करोगे वो तो इवेंचुअली आपको मिलेगा ना, जिसके लिए एफर्ट करोगे वो तो इवेंचुअली। अच्छा, रेडियो के साथ नहीं, रेडियो पाकिस्तान के साथ रेडियो प्रोग्राम किए बहुत। अच्छा, मैंने रेडियो पे बहुत प्रोग्राम किए। मैंने एक आईना किया प्रोग्राम वहाँ, एक रूबरू किया, एक कहकशां थी वो म्यूजिकल प्रोग्राम था वो भी किया मैंने। मैं शायद कोई एक कहकशां थी, ये कोई और तरफ बात चल पड़ी। म्यूजिकल प्रोग्राम था, उसमें मेरी जो बीवी हैं वो मेरे साथ को होस्ट थी। ओह वाह, तो वो भी बड़ी सुहानी और बड़ी हसीन यादें हैं। अरे वाह जी, अरे वाह, आपने यहीं पे बात ख़त्म कर दी कि सुहानी यादें हैं, उसके बाद आगे देखिए उसमें भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा मार्का नहीं है जो मैंने आगाज़ किया हो और मुझे नाकामी हुई हो, and this is just because of अल्लाह। ये तो वैसे सही बात है, अल्लाह ताला की तरफ से है। अच्छा, वैसे किस मीडियम को आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है? प्रिंट को। हाँ, मुझे याद है आपने मुझे बताया था कि मुझे अभी भी अगर कोई कहे ना अखबार निकालने के लिए तो मैं अभी भी सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चला जाऊँगा। कोई नहीं है कि इसी अदारे में रहते हुए ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। आप मतलब प्रोग्राम नहीं करें लेकिन साथ साथ में ये ना कीजिएगा प्रोग्राम बंद करके, हाँ प्रोग्राम छोड़ छाड़ के। लेकिन आई हैव बीन ए मल्टीटास्कर ऑल माय लाइफ, मैंने कभी एक काम नहीं किया है। हाँ, अब तो सब चले गए हैं डिजिटल की तरफ। अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई नहीं देखता, जब से फ़ोन है हाथ में अब तो व्लॉगिंग की तरफ सब सारी दुनिया चली गई है। वाई प्रिंट मीडिया? लेकिन आप देखिए पूरी दुनिया में ये जो इलेक्ट्रॉनिक बूम आया है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो सोशल मीडिया है, इसके बावजूद जितने बड़े अखबार हैं उनकी एक कॉपी कम नहीं हुई है। ना कोई अखबार बंद हुआ है। हाँ, बंद तो नहीं हुआ। ठीक है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम है, चाहे गार्डियन है, चाहे टेलीग्राफ है, जितने बड़े बड़े अखबार हैं जो 100-150 साल पुराने हैं, हिंदुस्तान टाइम है, अमृत बाजार पत्रिका है, जितने भी हैं ये अखबार चल रहे हैं। हाँ, प्रिंट मीडिया हैजंट बीन बरीड येट। हाँ, लेगेसी तो चल रही है। लास्टली, बिल्कुल टाइम बहुत शॉर्ट है बुखारी साहब, लास्ट हमारे व्यूअर्स को आपके पास स्टेज है, एनी मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स? द ओनली मैसेज जो मैं चाहूँगा कि यंगर जनरेशन ख़ास तौर से उसको सुने, कमिट योर सेल्फ टू योर प्रोफेशन, गॉड विल गिव यू द रिस्पेक्ट एंड ऑनर। ओह वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा मैसेज है। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। ईद को सेलिब्रेट करें, ईद का 3rd डे तो आप सुकून से घर में एंजॉय करेंगे, नो ऑफिस नो वर्क। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अब आप लोग भी एंजॉय करें और हमें भी एंजॉय करने दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।